Hello, dear students. Welcome to the class today. Children, we are carrying on with this fourth chapter in geography, and the chapter is air. Children, the second and the third chapter. Why I am everybody? I am talking about the second and the third chapter because in those two chapters, you understood about the characteristics inside the earth and characteristics outside the earth. Now we are in this chapter understanding the characteristics of the earth, characteristics of the atmosphere above the earth, just above the earth, the atmosphere that is there. What is its characteristic? How does it work? What is its relationship with the human being? Yes, dear students, with the human being, it is with all the human that is who are there on this earth. Atmosphere is playing a very important role. We cannot breathe, we cannot survive if the atmosphere is not working properly. एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है. ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाए then also it's a problem. Please understand. Same thing goes yesterday in the last video that we were discussing. Same thing goes for the plants. Plants need carbon dioxide, but if the carbon dioxide is in abundance, अगर हद से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है तो प्लांट्स के लिए वो घातक है. तो इसी सब चीजों we need to maintain the balance. Okay, please understand that balance in the atmosphere needs to be maintained. ना ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, ना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस्ड मैनर. और अगर ये बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है. अब yesterday where we had stopped, वहां पे I had shown you a diagram. I am again making a rough diagram, my dear students, so that you can understand the structure of the atmosphere. सबसे नीचे में क्या है? Here we have the troposphere. Okay. In the downward area, we have the troposphere. Above that, I'm sorry, stratosphere. Above that, mesosphere. Above that, thermosphere. Above that, exosphere. यहां से सब जब निकलते हैं ना, एक्सोस्फेयर से जब निकलते हैं ना तो कहां पहुंच जाते हैं पता है? डायरेक्टली इन द डायरेक्टली ऑन द space, in the space. It takes a lot of efforts, it takes a lot of science to cross this exosphere. वो जो rockets जाते हैं, remember those rockets that go from the earth's surface, those rockets have got that technology where the rockets can move out of the exosphere. उतने फोर्स के साथ दे मूव आउट ऑफ द एक्सोस्फेयर. दैट इज देयर. ओके. और हमारे एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. सो आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. 5 layers ही तो हुए. जस्ट सी 1 2 3 4 5. यस, it is 5 layers. Okay. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere.
अब सबसे पहले वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर. Why do we call it troposphere? क्या होता है? And please remember, most important layer of the atmosphere, सबसे ज्यादा important जो है, that is troposphere. Most important layer of the atmosphere. ठीक है, एटमॉस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है. और हाइट कितनी है? रिमेंबर, ये यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग सम नंबर्स ऑल्सो. यू कैन सी इट इन योर बुक. ऑफ कोर्स नंबर्स आर गिवन. दैट इज हाइट इन किलोमीटर्स. किलोमीटर्स. सो इट्स हाइट इज 13 किलोमीटर. मतलब यहां से यहां तक इट इज 13 किलोमीटर. 13 किलोमीटर बहुत होता है. आप समझ लो, यहां से फ्रॉम हियर और फ्रॉम लंका टू सारनाथ व्हेन यू गो, तो उतना सोचो कितनी दूर है. इट इज सच अ लॉन्ग डिस्टेंस. और वो हाइट जो कवर होती है, दैट इज द हाइट फ्रॉम वेयर द ट्रोपोस्फेयर इज एग्जिस्टिंग. अब ये जो हम सांस लेते हैं ना, द एयर वी ब्रीथ, the air we breathe exists here. इसी जगह पे ये सारी हवा है जो कि हम ब्रीथ करते हैं. एंड ऑल द वेदर फेनोमेना, सारा कुछ, ये जो रेनफॉल है, फॉग है, हेल स्टॉर्म है, इट ऑल हैपन्स ऑन द ट्रोपोस्फेयर. Almost all weather phenomena, मतलब ये जो मौसम बदलता है ना, वेदर, मौसम जो बदलता है, that happens on this layer. इसी लेयर पे मौसम बदलने का सारा काम होता है. right from snowfall टू हेल स्टॉर्म. वो जो मतलब जो आंधी आती है, हेल स्टॉर्म मीन्स बर्फ की आंधी जो आती है, दैट इज हेल स्टॉर्म. रेनफॉल, फॉग. कितनी बार जाने में तो देखा होगा ना, सुबह उठ के जो पूरा व्हाइट व्हाइट पूरी धुआं से भरा रहता है. इट्स वेरी नाइस टू सी दैट. आजकल तो बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन ना, इट इज नॉट फॉग. ये स्मोक के साथ मिलके एटमॉस्फेयर में ये जो एयर होता है ना, इट फॉर्म्स स्मॉग. स्मोक प्लस फॉग इज स्मॉग. गॉट इट? तो आजकल ये ज्यादा मिलता है हम लोगों को. एंड दिस फॉग occur in this layer. ये सारा काम जो है ना, ये इसी लेयर पे होता है. ओके, सो नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट ट्रोपोस्फेयर इज. अब सोचो, अगर ट्रोपोस्फेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इफ सम प्रॉब्लम कम्स इन ट्रोपोस्फेयर, हाउ आर वी गोइंग टू ब्रीथ, हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव, हाउ आर वी गोइंग टू सस्टेन आवरसेल्व्स. कैसे जिंदा रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस वॉज द ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल दीज लेयर्स. लेयर वाइज, ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सारा एक एक नाम आपको याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद द नेक्स्ट लेयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेटोस्फेयर. Got it? स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर में above the troposphere lies stratosphere. Above troposphere lies stratosphere. ठीक है, ठीक ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है. और ये कितनी दूर तक है? ये तो हो गया था 13 किलोमीटर.
दिस इज 50 किलोमीटर माय डियर स्टूडेंट्स. 50 किलोमीटर तो यहां से मिर्जापुर चले जाएंगे 50 किलोमीटर. या ठीक है, तो थोड़ा उसी के आसपास. Now you can understand कितना, I mean, it's such a large layer is there of stratosphere. It ये height जो है, it extends up to a height of 50 kilometers. Got it? ये क्या है? दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. यहाँ पे बादल अदल नहीं होते. दिस लेयर, बादल अदल का कॉन्सेप्ट इज ओनली टिल ट्रोपोस्फेयर. यस, एंड थोड़ा सा, क्योंकि बादल के ऊपर, इफ यू हैव गॉन ऑन द एरोप्लेन, अगर आप प्लेन पे जाएंगे तो आप देखेंगे आप बादलों के ऊपर चल रहे हैं. द प्लेन इज फ्लाइंग अबव. प्लेन के नीचे में बादल होते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर के थोड़ा सा ऊपर जाके द प्लेन्स फ्लाई, एंड दैट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स and weather conditions. ठीक है, मौसम का भी असर इस लेयर पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है. एंड दैट्स व्हाई दिस लेयर इज मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. दिस लेयर इज मोस्ट आइडियल for flying aeroplanes. Got it? ये जो लेयर है ना, यहां पे एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए कंडीशंस आर एब्सोल्युटली फाइन. एंड वन इंपॉर्टेंट फीचर, स्ट्रेटोस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस. Most important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone. Ozone layer is very important for the mankind because क्या होता है, ozone layer is that layer when the strong heat of sun rays are very strong. एकदम एक बार में देखो स्किन कितनी जल जाती है अगर आप डायरेक्टली if you go under the sun. It has a very negative impact on your skin, ठीक है, and on your body. तो ozone layer protects us from that. अभी हमने just now we have अभी हमने कुछ दे मतलब कि last video में we have learned about it कि harmful effect, it prevents us from the harmful effect of sun rays. It prevents us from the harmful effect of sun rays. ठीक है, सन रेज से हमको बहुत ज्यादा राहत मिल जाती है थ्रू दिस लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर. तो इसको तो हमको सच में बचा के रखना है. इमेजिन व्हेन द डायरेक्ट, आजकल देखो कितनी तेज धूप निकल रही है, सच हार्श हीट कंडीशन, सच हार्श वेदर कंडीशन. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ओजोन लेयर को कितना हार्म पड़ रहा है. ओजोन लेयर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. नहीं तो ये द हीट that is falling directly on the earth will not have such a deep impact, such a harsh impact on the human life. Got it? So that is there. Now हमने troposphere पढ़ लिया, हमने stratosphere पढ़ लिया. Which is the next layer? Yes children, the next layer is
mesosphere. When you talk about stratosphere, please do mention about the ozone layer. Got it? जब आप स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे आपको ओजोन लेयर के बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी है. Okay, then you have mesosphere. मीजोस्फीयर में क्या है कि इट इज द थर्ड लेयर. पहला तो आपको पता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, देन द मीजोस्फीयर. इट इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का थर्ड लेयर इज द मीजोस्फेयर, and just of course it is lying above the stratosphere, and it extends up to a height of 80 kilometer. 50 kilometer stratosphere tha, this was 50 kilometer, this was 13 kilometer, and this is 50 kilometer. तो आप सोच लो 50 किलोमीटर की हाइट कितनी. आई एम सॉरी, 50 किलोमीटर तो ये, this is 80 kilometer. Third layer of atmosphere lies above the stratosphere. ठीक है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, एंड इट इज एक्सटेंडिंग अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. 80 किलोमीटर तक इट इज एक्सटेंडिंग. इसमें क्या होता है ना, मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस. मीटियोराइट्स होते हैं ना, वो जिसको धूमकेतु कहते हैं, हिंदी में इट इज कॉल्ड धूमकेतु. वो जो कभी कभी तारा टूटता हुआ नजर आता है, या इस तरह की जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आर देयर ऑन द स्काई, दैट इज मीटियोराइट्स. Meteorites burn up when it enters this layer. तो ये लेयर जो है ना, मीटियोराइट्स को आदत है स्पेस में घूमने की. मीटियोराइट्स कीप टेकिंग अ राउंड इन द स्पेस. तो जैसे ही मीटियोराइट्स एंटर दिस एरिया, दे बर्न. तो यहाँ का हीट इज, दे कैनॉट, आई मीन द मीटियोराइट्स कैनॉट टेक द हीट ऑफ दिस एरिया. सो again I am telling, just for your remembrance, troposphere extends to 13 kilometer, stratosphere is for 50 kilometer, and mesosphere is for 80 kilometer. Got it, children? अब आप बताइए मीजोस्फीयर के ऊपर कौन सा लेयर है. विच लेयर इज एग्जिस्टिंग अबव द मीजोस्फीयर. मीजोस्फीयर के ठीक ऊपर में देयर इज थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर मीजोस्फीयर के ठीक ऊपर है. एंड थर्मोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली. Temperature rises very rapidly. बड़ी तेजी से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है. एंड विथ इंक्रीजिंग हाइट, जैसे ये हाइट बढ़ती है ना थर्मोस्फेयर की, द टेम्परेचर इंक्रीजेस अ लॉट, बड़ी बहुत. क्योंकि अब क्या हुआ, ओजोन लेयर के तो ऊपर आ गए. Ozone layer is not there. अब तो direct heat of the sun is falling on the earth. तो these are those areas जहां पे कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है. इस एरिया में जो भी जाएगा वो बर्न हो जाएगा, क्योंकि वहां डायरेक्ट रेज ऑफ द सन इज फॉलोइंग. सो टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली जैसे जैसे इसके ऊपर जाएंगे, विथ इंक्रीजिंग हाइट. ठीक है, हाइट बढ़ती जाएगा, टेम्परेचर भी साथ के साथ बढ़ती जाएगा. ओके, अब क्या होता है, इसी लेयर में थर्मोस्फेयर में ना वन मोर पार्ट इज देयर, दैट इज आयोनोस्फेयर.
उसको हम अलग से नहीं देखते हैं बिकॉज आयोनोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर की क्वालिटी काफी एक जैसी है. It is very much similar. That's why we are not discussing it separately. Where we have ionosphere is a part of this layer. Ionosphere is a part of this layer. इसी layer में we have ionosphere also. Got it? Now what happens is it extends between 80 to 400 kilometer. It extends between 80 to 400 kilometer. आयनोस 2 लेयर मिला के एक लेयर है ना, इसलिए इट्स हाइट इज वेरी हाई. 80 to 400 किलोमीटर. यहां से जब आप शुरू करते हैं तो 80 to 400 किलोमीटर. 400 किलोमीटर में तो लखनऊ तक पहुंच जाएंगे, लखनऊ से आगे भी पहुंच जाएंगे. यस. तो अब आप सोच लो कितनी ऊंची हाइट तक है. अब इसमें क्या होता है, दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. दिस लेयर helps in radio transmission. The rays that are there going above, coming down, going above, coming down. टेलीविजन जो चल रहा है, बाकी की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, all the media related things are happening because of this layer. Got it? That is there. Okay? And radio waves transmitted from the earth are reflected back to earth by this layer. Radio waves are reflected back to earth from this layer. अर्थ से सिग्नल जाता है दिल्ली में, दिल्ली की स्टूडियो में बैठ के सम प्रोग्राम इज हैपनिंग, कैमरा से वो शूट करते हैं एंड द रेज गो टू द थर्मोस्फेयर. वहां तक पहुंच के सैटेलाइट्स आर देयर, दे रिफ्लेक्टेड बैक, जो कि हमारे को टेलीविजन में नजर आता है. इट इज अ मैटर ऑफ सेकेंड्स. यस. So this region, this area is the radioactive area. From here, what happens is troposphere, stratosphere, thermosphere, exosphere. Thermosphere, 4 layers के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. The next that we need to discuss is exosphere. Got it? Exosphere, uppermost layer of the atmosphere. It is the uppermost layer of atmosphere. Got it? And from here, this layer has very thin air. यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की उसकी जरूरत पड़ेगी. This layer has वेरी थिन एयर. बहुत हल्की सी हवा होती है यहाँ पे. ओके. एंड वेरी लाइट गैसेस आर हियर लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन. लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन are found on float into space from here. Float into space from here. यहां से स्पेस तक के लिए हीलियम और हाइड्रोजन टाइप के जो गैसेस हैं वो यहां पे फ्लो कर रहे हैं. एंड फ्रॉम हियर बाहर निकलते टाइम में व्हेन इट इज मूविंग आउट, इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. दिस रीजन इज हैविंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, जिसमें कि लाइट गैसेस आर देयर एंड लाइट गैसेस आर मूविंग आउट टू द स्पेस.
5 layers of the atmosphere. We have understood about all these 5 layers. एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए. Just go through these 5 layers. And next class में we will be studying and we will be talking about weather and climate. But I would like to give you a brief idea about weather and climate. Weather and climate, जैसे हम कहते हैं, what is the difference? I'm giving you an assignment where you have to give us the difference between weather and climate. ये जो दो concept है weather का और climate का, how does it happen? You have to explain me in the next class. Got it, children? So students, I had shown you these layers of atmosphere. Today we have discussed about it, the different layers that are there. All these layers are very important in our syllabus, in our books, and to understand the complete structure of earth. हम कहाँ रहते हैं, हम कैसे रहते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट है, all these things need to be very clear. तो इसमें हमने जो जो चीज़ें देखी है, that is all mentioned here. Troposphere, सबसे नीचे वाला, ये I had discussed yesterday also, but then this being a very important figure, very important picture, we need to be very clear on all the layers. Troposphere, stratosphere, mesosphere, ठीक है, और thermosphere and exosphere. And you know the distance between all these layers, जो अर्थ के जितने भी लेयर्स हैं उसमें हाउ आई मीन इट इज़ मेंशन इन किलोमीटर्स, कितनी दूर दूर तक दीज लेयर्स आर ऑफ सच वास्ट डिस्टेंस एंड फॉर सच वास्ट एरिया. काफ़ी बड़े एरिया में ये सारे डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं. इस चीज़ का क्लियर आप अगर हाइट का आइडिया है, if you have the idea of height, you will be understanding the distance that is covered is the area which is surrounding our earth, the complete atmosphere. So the atmospheric structure needs to be very clear to you. Okay, so सबसे पहले troposphere we have seen, जहाँ पे all the major weather changes are happening. Yes, in the next class we will be talking about weather and climate also. I will be showing it to you. मैं आपको आज ही दिखा देती हूँ, though I was discussing it, but then I'll show it to you what is actually the major difference between weather and climate. Okay, so layers of atmosphere is there on the top. We have the that is flying on the stratosphere. Then we have the mesosphere and thermosphere and exosphere. ये सारे layers जो हैं, these layers are constituting very important part of our environment, of our atmosphere, and is giving us lot of comfort. We are staying so well. It is because of these layers that has kept us healthy, fit and fine. Otherwise some of these layers, अगर ओजोन लेयर जैसे अब धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, this is very harmful for the human life and for the mankind. Scientists are there, countries are there which are trying to find out solution कि ये जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है इसको हम कैसे बचा सकते हैं. How can we save the depletion of this ozone layer? So balance needs to be maintained in each and every corner, and this balance has to be maintained in the atmosphere. अगर बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो अर्थ्स लाइफ वुड बी इन डेंजर. ठीक है, जीवन का ये जो अर्थ में जो हमारी लाइफ है इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, and a time will come when the matters will be out of our control. Stratosphere हमने पढ़ा, then mesosphere up to the height of 80 किलोमीटर. ये किलोमीटर्स याद रखना,
1 mark के लिए it could be frequently asked question for how many kilometers is the mesosphere situated, what is the height of the thermosphere. तो thermosphere की height आप यहाँ बताएंगे 80 to 400 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा thermosphere की height है. उसके बाद exosphere तो ऐसा एरिया है जहाँ से कि we exit into the space, सीधे के सीधे हम अंतरिक्ष में निकल जाते हैं. एक्सोस्फेयर वेरी थिन, बहुत, इसमें हवा बहुत कम होती है, गैसेस हीलियम है, हाइड्रोजन है, तो इट फ्लोट इन द स्पेस फ्रॉम हियर, यहाँ से ये स्पेस पे फ्लो करते हैं. ओके, अब देखो वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर एंड क्लाइमेट में क्या है, हाँ, वेदर जो हमको पता चलता है, no, let it be a suspense. We'll meet in the next video and then we will be doing all the discussions. Thank you children.